آپ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کان اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ایک 500 میل دور کی کوڑی لے کر آپ آئے ہیں، اور وہ کوڑی کیا ہے کہ اس حدیث سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے۔ واہ بھائی واہ۔ حضرت یہاں پر ایک بات کہوں، کمنٹ میں کوئی ویر نام سے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھ لیں اگر آج بلا لیں بھائی، ذرا جی جی کلیئر کریں۔ جی بھائی ایکس اگر وہ مسلم، ہوں تو کمنٹ کریں ویر صاحب جی۔ جی میں بھی چاہتا ہوں، تو میرے کچھ 2-3 سوال ہیں۔ آپ واقعی ایکس مسلم ہیں؟ جی واقعی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا؟ میں چاہتا ہوں واپس آنا۔ میں نہیں ابھی آپ امامت کیا کے ہیں؟ سوال، ابھی کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو ابھی تو میں ایکس مسلم ہوں۔ اوہو، ایکس مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کیا ایتھیسٹ ہیں، کرسچن بن گئے ہیں، یہودی بن گئے، کیا ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وہ کا تو مجھے جواب مل معلوم ہے، گیا آپ مجھ سے میں سوال واپس کرنا چاہتے ہیں، اسلام لیکن ابھی قبول ہیں کروں کیا؟ واٹ ڈو یو بلیو ان؟ گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام میں آؤں، اگر یہ سوالوں کا جواب ملے تو۔ میں آپ کے ابھی تو سوال دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ میرا سوال کا جواب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ جی نہیں، کچھ اختیار نہیں کیا ابھی تک۔ میں اسی اسلام پہ ہی ریسرچ کر رہا ہوں۔ آپ ایتھیسٹ ہیں، ہاں یا نا؟ نہیں، ایگنوسٹک ہیں، ہاں یا نا؟ نہیں، میں گاڈ کو مانتا ہوں۔ گاڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میرے خیال سے، پھر میری؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیے اب آپ گاڈ کو مانتے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں، اب آپ اپنا سوال لکھیے، چلیں بولیں۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ 23 اس کے بعد آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے۔ قد افلح جی المؤمنون، آیت سورہ اچھا مومنون۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں۔ جی قد افلح المؤمنون، ہوں یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ اس جی کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب عورتوں اب کو آیت پڑھ لیجیے، آیت حجاب پڑھ کا لیجیے حکم، جی۔ جی حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب ہوں ادھر میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، تو مطلب جو ہوں ایمان والی ہے وہ فلاح ہوں حاصل نہیں کی۔ زبردست۔ یہ آپ کا سوال تھا، چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے، میں اس کا جواب اگر دینے اس کی کا کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے، یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا؟ جی اور دو ایک قرآن ایک حدیث سے، 3 چلیں ٹوٹل ہے۔ یہ پہلے چل جانا جی۔ اچھا جی، عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ آیت ہے، اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا، یعنی ساؤنڈ میسکلن پلورل، ورب ہو یا ناؤن ہو، وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے، جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے، تو وہاں دونوں کے بات کی گئی، میل کے کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی، فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی۔ لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے، جہاں حکم دونوں کا ایک ہے، تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مؤمن مرد ہی فلاح پائیں گے، مؤمن جو بھی ہوگا وہ مرد ہو کہ عورت، وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، بشرطے کہ وہ آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے۔ جی یہ عربی کا ضابطہ ہے۔ جی کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کے لیے مؤمن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل، مؤمنتن و مؤمنتن فلیعمل صالحا، اس طرح کے الفاظ میں آیت نہیں نکالتا ہوں، نہیں، وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہے نا۔ دونوں ہیں وَمَن جی جی۔ يَعْمَلْ مِن ایک منٹ، قرآن کی آیت جو ہے، جس میں مومنہ کی رک اس جائیے کا مؤنث کا رک صیغہ۔ جائیے، میں نہیں، نہیں، وہ مطلب من جس عمل میں کہا صالحا من گیا ذکر او انثى، مومن، وہ جو دوسری آیت ہے، لیکن رک جی جائیے، میں دیتا ہوں، آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجئے جی۔ آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو
औरतों मर्द दोनों के लिए। ठीक है, यानी ये वो सवालात हैं, ठीक उतनी देर में मुफ्ती साहब निकाल, यानी ये वो सवालात है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। बड़े खतरनाक आपके सवालात है, मैं खुद इस वक्त मेरा डामाडोल हो रहा है इस्लाम। इसमें जब बता रहा है कि सिर्फ ईमान वाले ही भला पा सकते, ईमान वाले नहीं पा सकते। जी, अब ये फलाह वाले वो दूसरी आयत के अंदर भी है सीधी तरह, जो कुरान की आयत है, सूरह नहल की आयत नंबर 97। जी सुन लीजिए, जवाब मिल गया लेके भाई। जी जी सूरह नंबर सूरह तहरीम में आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाता है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से, वकानत मिनल कानितीन, ठीक, कि वो कानितीन यानी नेक बख्तों में से थी। अब कानितीन जो है, जब आप अरबी में देखेंगे तो ये साउंड मैस्कुलिन प्लूरल है, लेकिन हजरत मरियम को उसमें शामिल किया गया कानितीन में। इसका मतलब ये है कि ये लफ्ज मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, दोनों के लिए। अच्छा तो ये आपकी इसका एक रेफरेंस मिल गया जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। मैंने, चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कानितीन हजरत ये भी मैस्कुलिन ले लें हजरत में भी। औज़ बिल्लाहि मिनश, सूरह नहल की जो आयत मैं पढ़ने लगा था, अगर ये बात है सूरह, तो उसमें भी जो है ना मैस्कुलिन का सीगा प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। औज़ बिल्लाहि मिनश रजीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन, मन अमिला अमलन सालिहन मिन, ये इसने आयत गलत लिखी हुई है। नहीं वो जो सूरह नहल में है उसमें मिन ज़करिन औ उन्सा है, वो यहाँ फिट नहीं होगी। नहीं वो आगे जो सीगा इस्तेमाल हुआ है हजरत, वो देखें, वो मुज़क्कर का हुआ है, वाला नज्जियन्नहुम, वो मुज़क्कर का हुआ, बिल्कुल। हाँ ये देखें, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वाला नज्जियन्नहुम अजरहुम बि अहसनि मा कानू यअमलून। ले जी इसमें भी मुअन्नस का पीछे सीगा बोल के उनसा, ज़करिना उनसा, और सब दोनों को मुअन्नस के अंदर शामिल किया। अच्छा, एक और नुक्ता यहाँ पर ये है कि मिन ज़करिन औ उनसा कहकर वहां कहा है वहुवा मुमिनुन, देखें मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया यहाँ भी, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस की हालत मुज़क्कर के साथ बयान की गई है यहाँ भी। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट, जबरदस्त। जी हाँ, ये तो ग्रामेटिक रॉन्ग हुआ ना। किसने किया ग्रामेटिकल रॉन्ग? यार कुरान से ही साबित कर रहे हैं कि इसको ग्रामेटिकल रॉन्ग। आपको जवाब दे दिया, इस मसला आपका सवाल हल हुआ। आपने कहा मिसाल दे दी, एक नहीं दो दे दी, अब आप कह रहे हैं ग्रामेटिकल रॉन्ग हो गया। कैसे हो गया भाई? एक मिनट, ग्रामेटिकल रॉन्ग तब होता, एक्स मुस्लिम, ग्रामेटिकल एरर तब होता जब अरेबिक ग्रामर में ये उसूल ना होता कि मुअन्नस को मुज़क्कर के अंदर शामिल ना किया जाता होता, तब होता। अब अरेबिक ग्रामर का उसूल है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अरबी ग्रामर का उसूल नहीं है, ये तमाम इंसानी जबानों का उसूल है कि जब आप मेल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड मानी जाती है। आप जो जितनी भी क्लासिकल किताबें उठा कर देख लें, चाहे बाइबल की इंग्लिश तराजिम हो के तौरा हो, ये जितने भी हो, सब में द वन हु डज, ही हु डज, इस तरह के उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है वो मेल के ताबे है, उसको उसमें शामिल है। ये सूरह अहज़ाब की आयत भी ले लें, सूरह अहज़ाब की आयत है, वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुम खियरा मिन अमरिहिम। आगे भी फिर आगे आ गया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द, बहुत सारी आयतें हैं जहां मुअन्नस को मुज़क्कर के अंदर रखा गया है। ये फेमिनिस्ट का सबसे बड़ा रौला है जी। इसके साथ वो जो कद अफलाह वाली आयत है ना, इसका शान नज़ूल ये है कि ये उन लोगों के लिए नाजिल हुई थी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, तो उन पर तो औरतें भी ईमान ले आई थी, तो इनके अंदर वो सब कुछ शामिल है। अच्छा, सबसे पहले सवाल तो फिर हजरत आयशा को होना था ना कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं है, हमारी फलाह का क्या होगा? बिल्कुल, कुरान में देखें, ऐसे तो है नहीं कि जब जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त मुसलमान औरतें नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मोमिन औरतें थी, उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? आपसे पहले तो उनको सवाल आना चाहिए था, क्योंकि असल तो मसला उनका था। और अरब भी थी, जवाब मिल गया आपको? नहीं, वो तसल्ली नहीं हुई। देखें, तसल्ली कराने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, तसल्ली कराने के लिए नहीं बैठे हैं, जवाब देने के लिए बैठे हैं। जवाब मिल गया, तसल्ली देने वाला वो अल्लाह ताला है, वो जाने, वो उसका काम है, हमारा काम तसल्ली
हाँ वो तसल्ली, एक पेशेंट था वो उसकी सर्जरी के बाद भी नहीं हुई थी। अच्छा अब ये चीज है, एक और चीज सुन लीजिएगा, कुरान की एक आयत है 30वें पारे में जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि जो नेक रूहें हैं उनको जेंडरलेस के तौर पर एक्सप्लेन की, मिसाल के तौर पर या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुतमइन्ना जो फ्लाप आ गई ना नफ्स, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राजियतम मर्दिया, मुन्नस के तौर पर फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। लो इधर तो मेल दाखिल ही कोई नहीं है। अब अगर अब कोई मेल ये कहे क्रॉस कि कर यहाँ दे। तो अब वो तो यानी मर्द तो जन्नत में जाएगा ही नहीं है भाई। अब हम बैठ जाए कि यार हमारी ये जन्नत का जवाब परवाना यही है। किधर है। हाँ अब फिर मैं उसके इमामों से, अपने लोकल मस्जिद के इमामों से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, डांट के भगा दिया। अभी आप तो हमने जवाब दे दी, हमने तो प्यार से हंस के लाडियां करके जवाब दिया। सही है। हाँ नहीं, आपकी महल्ले की मस्जिद के इमाम ने अगर आपको डांट कर भगाया है तो मैं ऐसे इमामों से कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने हाल पे रहम करें। ये तरीका गलत है कि आपसे कोई सवाल करे आप उससे नाराज हो जाएं। इसका ये इस बात की दलील है कि आपके पास इल्म नहीं है, तो अपनी जिहालत को एक्सपोज ना करें। जी अब आगे बोलें। ये दूसरा सवाल सूरह तौबा की, आया 5 सूरह तौबा की नहीं, इसमें इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदी, फअबुदनी, इंडीड आई एम अल्लाह, देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट मी, सो वर्शिप मी। फिर सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। इंडीड सचवाला से पढ़कर आए हैं, हु सेंड डाउन। सचवाला से पढ़कर आए हैं। जी नहीं, ये सचवाला से सवाल नहीं पढ़ के आया हूँ। ये सचवाला की वीडियो देखकर ये सवाल जहन में आया। ओ भाई इस पर मैंने पूरी डिबेट हाँ, सचवाला से की हुई है। हाँ ये कह रहे कि हाँ सचवाला की वीडियो देखकर जहन में आया ना सवाल। ये तो मैं अभी कुरान खोल के भी पढ़ रहा हूँ अभी। तो अब वो मुझे मालूम है कुरान खोलकर, ये सवाल आपके जहन में ट्रांसलेशन है। सचवाला ने डाला ना, उसकी वीडियो देखकर आए ना। जी जी जी, ये देखो मैं जानता हूँ हाँ हजरत वाह क्या बात है, अंतर्यामी डिबेट देखा अंतर्यामी। हूँ। जी मुफ्ती जी, भाई आपका और सचवाले का उस डिबेट देखा हूँ, तो और उस डिबेट के बाद एक और वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। उसमें मेरे साथ वो हैं क्या नाम उनका, फजल हमदर्द साहब, वो भी मौजूद हैं, जो उसकी पोस्ट डिबेट एनालिसिस है ना सचवाला के साथ, वो भी देखिएगा। उसमें मैंने न सिर्फ ये कि अरबी अदब से बल्कि इंग्लिश अदब से, उर्दू अदब से और अलग अलग जबानों से, उनके लिटरेचर से ये दिखाया था कि जो रॉयल तरीका है बात करने का, शाहाना अंदाज है, वो जमा के सीगे के साथ इस्तेमाल। आज भी आप लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में बहुत से लोग उर्दू जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते मैं, वो कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये जाएंगे, हम खाएंगे। अब कोई उनसे पूछे भाई कितने लोग हो, एक। और आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है भाई। जितने लिबरल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं एलजीबीटी के लिए जो ना दे का लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्रांसजेंडर के लिए दे बोलें, दे ही ना बोलें। क्यों? क्योंकि दे जो है वो भी सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आजकल का तो मसला ही कोई नहीं है। जी भाई मैं तो एक दिन डर गया था, एक्स मुस्लिम भाई दोस्त था मेरा, कहता हम आ रहे हैं आपके पास खाना खाने के लिए। मैं डर गया, मैंने को 8-10 डिशें पका, बाद में पता चला एक बंदा खड़ा है। जी चलिए मुफ्ती जी, मैं वो वीडियो देखूंगा तो इसमें तो मुझे जवाब मिल जाएगा। हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्स मुस्लिम भाई, एक अगले सवाल से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना बराह करम मेरा भाई, आपकी एज मुझे लग रही है छोटी, मैं पूछूंगा नहीं, रुक जाइए आमिर भाई एक मिनट। जी जी एक्स मुस्लिम भाई एक मिनट नहीं रुक जाइए एक मिनट, मैं सवाल कर लेने दीजिए। आप पहले मुसलमान थे? जी मैं मुसलमान था। थे, अच्छा। तो जरा सा मुझे अब आपका मैं टेस्ट लूंगा। मुझे बताइए वितर की नमाज कैसे पढ़ते थे? वितर इशा में होती है। कैसे पढ़ते थे? 3 रकात पढ़ते थे, ठीक है, सही है। आप इस टेस्ट में कामयाब हैं। और उसकी वजह मैंने आपसे क्यों पूछा ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने मुझसे कहा मुफ्ती जी। ये जो जी आपने निकाला ना, इंडिया में आमतौर से मुसलमान इस तरह से मुखातिब नहीं होते हैं, इसलिए मुझे आपका ये टेस्ट लेना पड़ा। जी गो हेड। जी अब मैं आपको नसीहत करना चाह रहा हूँ एक्स मुस्लिम भाई, मेरे छोटे भाइयों, फिर मैं चाह रहा हूँ आप तीसरा सवाल भी कर लो, क्योंकि अगर आपको सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस्लाम की तरफ वापस पलट आओ प्यारे भाइयों हमारे। मेरी बात ये है मेरा भाई
کہ اگر آپ کو کوئی مولوی یا کوئی اسکالر یا کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب کسی کے پاس فار دا سیک آف آرگومنٹ جواب نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مارکیٹ میں کسی کے پاس جواب نہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. مثال کے طور پر آپ دکان میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں، مثال کے طور پہ اپنی والدہ کی اسی وجہ دوائی سے ہے. تو میں آیا ہوں آپ کے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. میں دیکھا ہوں ٹھیک ہے، اچھا ہے، گڈ. مفتی جی ویری کی گڈ، میں ویری گڈ. ویڈیو تو دیکھا ہوں، اس لیے میں دیکھا ہوں اس ایکسپوز ہوا سچ والا. جب زبردست ہو گیا الحمدللہ. جب بھی کوئی سوال آپ کو تنگ کرے، آپ نے ریلیونٹ بندے یا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے پاس پہنچنا ہے. جلدی فیصلہ نہیں کرنا، ہمت نہیں آنی. بس میری چلے اب گزارش یہ آپ تھی. جو ہے اپنا اب رکھ تیسرا لیں سوال کر لیں کوئکلی. جی. وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ابھی بھول گیا ہوں. تو ایک بار میں نے عامر بھائی کے بھی چینل پہ میں وہ حدیث دیا تھا. عامر بھائی نہیں، یہ علی رضا. حدیث کیا ہے؟ اگر کچھ ویسے ہی بتا دیں کس موضوع پر ہے، کیا ہے، کچھ ذہن میں ہو. وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کی گئے، وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو ان کو منع کر دیا گیا تھا، ایسا ہی ہے. ہاں، اجازت مانگی زیارت کی تو وہ دی گئی، مغفرت کی دعا کی طلب کی تو منع فرمائی. اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا وابکا من حولہ، خود بھی روئے اور آس پاس میں جو لوگ تھے وہ بھی روئے. فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. واستأذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، ہاں مجھے قبر کی زیارت کی اجازت میں نے مانگی تو مجھے اجازت دی گئی. جی اب آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ سکتے تو اپنی والدہ کے لیے کیوں نہیں؟ ٹھیک، بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے، اور وہ پیمانہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. عام انسانوں کے اوپر تو ہوتا ہی ہے، انبیاء کے اوپر بھی، کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سکوت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نے استغفار کی اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن میں یہاں اس سے بڑھ کر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دلیل تو، یہ حدیث تو اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. زبردست. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہوتے العیاذ باللہ تو یہاں پر یہ کہتے کہ میرے رب نے، میں نے اجازت مانگی اور مجھے اجازت دی گئی، مجھے اسپیشل پروٹوکول ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تک اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا یہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زبردست. حضرت میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، ماشاءاللہ. زبردست. تو مفتی جی، قرآن میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نبی یہ نہ کبھی تین حل ہو گئے. یہ چوتھا سوال ہے. اسی یہ چوتھا ہے. نہیں، اسی سوال اچھا، پہ، اسی سے اسی سوال ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی غلط راہ چلے نہ کبھی بھٹکے ہیں. آپ ٹھیک. کہ یہ زمانی جاہلیت کی بات تھی. نہیں، ایک منٹ، نہیں، ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ پر چل پڑے تھے، استغفار کر لیا تھا، یہ اجازت مانگی تھی اور اجازت اور منع کر دیا گیا. کسی چیز کی اجازت طلب کرنا اور اس پر منع کر دیا جانا کیا غلط راہ ہے؟ اچھا، کسی چیز مغفرت مطلب کچھ غلط، اگر اس کا منع فرمایا جا رہا ہے مطلب وہ شرک گناہ، شرک کی معافی نہیں ہے مطلب. ہاں یہاں یہ ہے بالکل، شرک کی وجہ سے مغفرت استغفار سے روکا گیا کہ چونکہ وہ مشرک ہیں، مشرک کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کی معافی نہیں ہے. جی. تو جب نبوت 40 سال کی عمر میں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب 40 سال پہلے اگر ان کی والدہ اگر شرک کی، نعوذ باللہ. ہاں بولے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی تو قرآن کی یہ آیت. نہیں، ایک منٹ، کیا بول رہے بھیا، صحیح سے بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کب کیا؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا.
साबित नहीं, इस हदीस से तो साबित होती है। आपने कहा ज़माने जाहिलियत में मग़फ़िरत नहीं हुई क्योंकि मग़फ़िरत ओ इस भाई, गुनाह की नहीं होती आपका जिसपे ये शिर्क दावा है होती कि है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया नबूवत मिलने से पहले, दलील? जी, दलील ये हदीस है। ये हैं? हदीस है। जी, अगर लो उनकी वालिदा जी, आप अगर उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वालिदा वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क किया अलियाज़ बिल्लाह 40 साल से पहले, इस हदीस से आप साबित करेंगे। अगर उनकी वालिदा अगर हो सकती, अगर कुछ किसी गुनाह की मग़फ़िरत नहीं मिली मतलब वो शिर्क की गुनाह है, उनका जो बेटा होगा बेटा वो बेटा भी होगा, यानी अपने माँ-बाप यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके अब्बू ने चोरी पॉसिबिलिटी की है तो आपको भी चोरी के तौर पर अंदर धर दिया जाए, ये तो पॉसिबिलिटी के? अगर चोरी अलग बात हुई, वो तो नहीं, प्रैक्टिकल अलग चीज़ हुई। क्राइम है ना, अभी कमाल है। अल्लाह के नजदीक तो शिर्क चोरी से बढ़कर है ना, चोरी तो माफ हो या जाएगी, तो शिर्क तो माफ नहीं होने हाँ, का। या तो आप ये साबित कर दें, एक्स मुस्लिम, या तो आप ये साबित कर दें कि अरब के अंदर मुवाहिद था ही कोई नहीं, या अहले फतरत थे ही नहीं, जितने सही। बच्चे पैदा हुए सारे मुशरिक थे, जबकि ये साबित होता है उसी तारीख से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुवाहिदीन मौजूद थे। भाई वरका बिन नहीं नौफिल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, वरका बिन नौफिल जन्नत में है, सफेद लिबास में देखा, जबकि वरका बिन नौफिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। ये कहा था कि जब आप दावत देंगे तो मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं मदद करूंगा, ईमान लाऊंगा, उससे पहले इंतकाल हो गया था, वो तो फतरत पर थे। आमिर भाई आपने कहा ये चोरी जुर्म था, वहाँ इबादत करना जुर्म नहीं था, जुर्म की बात हो कोई रही है, अच्छा जुर्म, नहीं था। जुर्म, अच्छा अच्छा, जुर्म चलो जुर्म। जुर्म एक मिनट, मतलब चलो चलो चोरी चोरी जुर्म था, जिना तो नहीं था वो ना? इबादत करना अच्छा था, जिना तो इबादत नहीं था ना? करना वहाँ अच्छा माना जाता था ना, चले जना परस्ती अच्छी जना तो मानी जाती एक थी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंडिया के अंदर, आप इंडिया से हैं ना? जी, इंडिया से हूँ। हाँ, आपके वालिद ने अगर फॉर्निकेशन किया है, जिना किया है, तो इसका मतलब आपको भी धर लिया जाए, क्योंकि इंडिया में तो क्राइम नहीं है ना, हो सकता है। जिना क्राइम है, क्राइम किधर नहीं कर क्राइम है? सकता बंदा अगर कितनी कितनी जिना किधर क्राइम। किधर क्राइम है? किधर क्राइम है इंडिया में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किधर, के हिसाब किसकी से बात कर रहे हैं? आपको पुलिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया में जिना क्राइम है। आज नहीं, आज की ताजा खबर। वाह जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी ओ बच्ची नहीं, 6-7 साल बच्ची की उम्र तक तो हो ये सकता है कमाल है। ना, ये क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? अगर उनकी आपको पता वालिदा चल रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? अगर अगर उनकी वालिदा अगर शिट मैं वो आपसे पूछ रहा वो हूँ 6 जो साल की उम्र में अगर मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके वालिद ने अगर कोई ऐसा काम किया जो इमोरल था, क्योंकि आप क्राइम से अब बचना चाह रहे हैं, तो मैं क्राइम की लिस्ट को निकाल रहा हूँ, इमोरल कोई एक्टिविटी की, यानी मिसाल के तौर पे शराब तो लीगल है ना इंडिया के अंदर, लीगल है ना? तो आपके वालिद भाई ने अगर शराब पी है तो मैं आप बिहार हैं? में इलीगल है, बिहार में बैन यानी है। आप वाकई सीखना चाह रहे हो या तो टपोसियां मारनी है? मुझे तो पहले भाई बता मैं दो। अपना वो जो जुमला इमाम साहब को मैंने कहा था मैं वापस लेता हूँ। इमाम साहब अगर हाँ, आपसे वापस ले नाराज चलो। हुए तो सही हुए, सही क्योंकि हुए, आप गुफ्तगू ऐसी कर समझने नहीं रहे हैं, जा रहे। समझना नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो आप इस हदीस का मफहूम आप तो समझा नहीं पा रहे, मैं तो आपसे इस हदीस का समझा नहीं, मफहूम समझने आपको अगर समझाए, आप मेरी बात सुने, कुरान की जो आपको पहली समझा आयत दिया, तो गलत आपका हुई जो ना। सुन, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, सॉरी सॉरी, जाहिल जहालत की जब बात करेंगे तो फिर हम आपसे इजाजत भी लेंगे, माजरत चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने पूरे खुलूस के साथ आपके सामने रखा, मेरी बात सुन लें आप। आपने पता है क्या बात की? आपने जो बात रखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो समझा दी, उस पर आपका एक एतराज है कि आप कान अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूजी, एक 50 मील दूर की कौड़ी लेकर आप आए हैं, और वो कौड़ी क्या है कि इस हदीस से साबित करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक करते थे। वाह भाई वाह, हैं? अगर ये किधर से निकला अगर है? किसी इसको आपने प्रूव वालिदा का करना अगर है, हमने नहीं 5-6 साल समझाना। का बच्चा हुआ, जनरल हाँ सेंस बोले। है, जनरल सेंस है, 5-6 साल का अगर बच्चा हुआ, उसकी वालिदा अगर कुछ कर रही है अच्छा काम, उस साबित, टाइम में ये कोई ये जनरल साबित सेंस से करें ना। साबित नहीं होता, साबित करना होता है। मैं तो वही जनरल सेंस जब मैंने आपके अब्बू पर लगाई तो फटाफट आपने टपोसियां मारी हैं, बिहार में फलाना है फलाना है, हो सकता है अल्लाह के रसूल के घर के अंदर ना होता हो, तो फिर अच्छा मैंने अच्छा काम किया। चलो अगर चलो अगर इसके, चलो जिना जनरल सेंस, सोसाइटी एक में मिनट अगर जनरल सेंस क्राइम देने था, लगा हूं, सोसाइटी में अब क्राइम था ना, जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कब हुई थी? वो आप भी नहीं बता पाओगे। नहीं, आप भी नहीं बता पाओगे, आप बताओ ना। चलो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बताओ कब हुई वफात थी? 8 अच्छा वफा, वफात बचपन में, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तभी हो गई। छोटे से थे, ठीक है ना, छोटे से थे, ठीक है ना। अच्छा, वालिदा की वफात कब हुई थी? 10-12 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैं? 10-12 पे हुए, 10-12 साल दस की बार उम्र में
10-12 साल की उम्र में, ये साबित करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल के थे तब जी उनकी वालिदा की जी, वफात हुई, तो ये साबित तब उनके करें, चचा ये अबू साबित तालिब ने ये साबित कर दें कि 10-12 साल की उम्र के अंदर हुई। क्योंकि मैं उसकी वजह पता क्यों बता रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं आपसे, उसके पीछे वजह है। जब आपने एक क्लेम को साबित करना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। जनरल जी सेंस जो मैंने होती है, मेरी बात सुने, जनरल सेंस इस मैं चीज के साबित ऊपर करता बुनियाद हूँ। नहीं बनती। हाँ करें। मैं 8 क्लास में उर्दू की किताब थी जिसमें सीरतुन नबी में आप ऐसे करें, आप 8 साल, उर्दू की आप किताब 8 है, क्लास की 8 किताब क्लास को की छोड़ें, फर्स्ट बुक होगी आप उर्दू की, 8 साल, मेरा भाई उसी मेरा में भाई मेरा भाई 8 साल की किताब छोड़ें, आप कोई तारीख में या कोई हदीस की चीज है वो बता दें। जितनी एज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलो वालिदा की डेथ हुई है, जितनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की डेथ हुई है, उतनी देर में आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई आदत भी डेवलप की होगी अल्लाह के रसूल ने अपने वालिदैन से। तो आपके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, अब आप नहीं जनरल सेंस, सिम- एक मिनट रुक मैं जाइए। तो जनरल अगर सेंस आपके से बात सामने कर रहा हूँ, जनरल आपने बोली सेंस हो, साबित एक करो, मैंने 8 सुन क्लास लीजिए की सुन लीजिए उर्दू सुन किताब लीजिए, की बुक से साबित कर एक सकते हो। तरफ आपके जनरल सेंस हो और दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई मजबूत दलील हो, तो आप जनरल सेंस के साथ चलेंगे या मजबूत दलील के साथ चलेंगे? मसलन जनरल सेंस कुछ भी हो आमिर सकता है भाई ने कि जी बोला साबित करो, मैंने 8 क्लास की उर्दू बुक की, चैप्टर नहीं पता लेकिन सीरत अभी चैप्टर का मजमून था, उसमें सादिक व अमीन पूरा मतलब चैप्टर उसमें स्टार्ट होता है उसमें ये उसी लिखा से। उसमें ये मैं लिखा था वालिदा कि अल्लाह के रसूल ने शिरक किया था, उसमें ये लिखा था शिरक किया था। आपने जो सवाल की वालिदा की इंतकाल कब हुई, तो उसमें वो लिखा तो हुआ था 10-12 साल की उम्र में। वालदा का इंतकाल जब आपसे पूछा, आप 8 क्लास में, मैं दलील ना मानता मेरा भाई, 8 क्लास आप दलील मानते हो। मैंने आपसे असल सवाल जो था ना, उस तरफ आ जाओ एक्स मुस्लिम भाई, असल सवाल की तरफ आ जाओ। आपने जो क्लेम किया कि अल्लाह के रसूल ने नाउज बिल्ला शिरक किया, नाउज बिल्ला लियाद बिल्ला, आप उसको साबित करने जनरल सेंस करेंगे तो मैं आप पर बड़े बड़े आरोप लगा दूंगा, जिसको कबाड़ा हो जाएगा मेरा भाई। अगर ठीक है, सोसाइटी उसको क्राइम नहीं मांगती है सिर को, उस टाइम वरका बिन नौफिल उसको क्राइम मानते थे, अब्दुल मुत्तलिब उसको क्राइम मानते थे, और एक बड़ी तादाद के नजदीक अबू तालिब उसको क्राइम मानते थे। एक लिस्ट है भाई बहुत लंबी जो उस शिर्क को क्राइम मानते थे। ये बात इमाम साबित कर दो, कुलैबी मैं की अभी किताब इस्लाम कबूल करता हूँ। अगर अच्छा ये अबू एक मिनट तालिब, ये साबित कर, अबू तालिब अगर एक वो मिनट शिर्क मानते एक थे, मिनट मैं मेरा एक जवाब मिनट मिल गया, एक बस मिनट इधर ही एक जवाब मिनट मिल गया। एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले मेरा भाई। आप ना इस तरफ तवज्जो करो कि आपका पॉइंट क्या है। आप पता है क्या पॉइंट रख रहे हो? आप रख रहे हो सोसाइटी जिस चीज को क्राइम नहीं मानती थी जरूरी वो करते होंगे। मैं आपको दर्जनों चीजें बता सकता हूं जो सोसाइटी उस वक्त क्राइम नहीं मानी जाती थी, अल्लाह के रसूल ने नहीं की। आपको पॉइंट क्यों नहीं समझ आ रहा? आप इतना बड़ा क्लेम, मिसाल के तौर पर जिना, आमिर भाई शराब 1 नोशी, मिनट मैं बोल रहा हूँ, मुझे ने बोला सुने जरा सुने, मैं एक मिनट अगर सुने चचा सुने, एक मिनट जरा सुने, मैं सुन चचा ले। अबू तालिब, एक अगर चचा अबू तालिब अगर ये साबित कर दे कि अगर क्राइम मानते थे, चुप करें, मेरी बात मेरा सुने, जवाब मेरी बात इधर सुने, ही मिल गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपका जवाब आपको देते हैं, सुने जरा। क्या अरब की उस सोसाइटी के अंदर जना कॉमन था या नहीं था? बिल्कुल कॉमन था जी बताएं जरा, एक्स सोसाइटी मुस्लिम में अपने मुंह से बोलें। क्राइम माना नहीं जाता नहीं, एक था। मिनट आमिर भाई, उसको वो बात ही नहीं करनी है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें एक जुमले में। मैं कर जिना लेता हूं। क्राइम नहीं था। जिना जी, जिना क्राइम नहीं था, शराब क्राइम नहीं था, इवन हराम महीनों के अलावा रहजनी करना क्राइम नहीं था। बच्चियों को ठीक है, जिंदा दरगोर करना क्राइम नहीं जिंदा था, दरकोर करना क्राइम नहीं था, प्रोस्टिट्यूशन करना करवाना क्राइम नहीं था, नंगे खाना काबा होकर तवाफ करना तवाफ क्राइम करना नहीं था। नहीं था। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो क्राइम नहीं थी। दर्जनों और चीजें बता सकते हैं जो क्राइम नहीं थी। कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल जिन माँ बाप के पास चंद साल और उनकी आदत अडॉप्ट करने से भी कम अरसा रहे हों, उनसे शिरक तो अडॉप्ट कर लिया हो, मगर जिस मुआशरे में 40 साल गुजारे हैं, ना वहां शराब पी, ना वहां ज़िना किया, ना नंगे तवाफ किया, वाह भाई वाह, मैं तुम्हारे सदके, तुम्हारी जर्नल सेंस के ऊपर। कि वहाँ के बच्चे नहीं करते थे ना, तो 12 साल की उम्र में उनकी वालिदा ओ, इंतकाल की। हैं? वहाँ के बच्चे नहीं करते थे ये सब, जिना कर ही नहीं सकते थे बच्चे। ओ भाई, मैच्योर होता 40 है तब साल कोई बंदा 12 जिना साल के करता है। बाद फौरन 40 साल का हो जाता है कि आदमी? हैं? 12 साल के बाद फौरन मैं 40 साल का हो बोलता जाता है हूँ आदमी? छोटा बच्चा शिर्क कर सकता है, जिना नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, नहीं, बड़े तो हुए ना आप सल्लम बड़े हुए। 18 साल का नौजवान तो कर सकता है ना, ज़िना?
اچھا اللہ کے رسول کی، اچھا میری بات سنو، میری بات سنو، اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کی شادی کب، سنو ذرا، سنو 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 سنو، اللہ کے رسول کی شادی کب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 20 سال کی عمر، کتنی؟ 20 سال کی عمر میں، کچھ نہیں 20 پتا، سال کچھ نہیں پتا، نہیں جیسے پتا، کچھ حضرت نہیں کچھ بھی پتا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کون سی بیچارے کو، کلاس میں خدیجہ تسلیم؟ 40 ابھی سال کون کی سی عمر کلاس میں آپ؟ ہیں؟ تسلیم ابھی تو 12 پڑھ کے چھوڑ دیا ہوں، 12 کمپلیٹ کرے مجھے 2 سال ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے پھر، اچھا ان کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کی شادی ہوئی 25 سال میں، جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق 25 سال، اور ایک روایت ہے 24 سال، اپنا سوری 26 سال، 25 یا 25 راؤنڈ فگر مان یہ تو لیں، صحیح ہے جمہور نا، 25 حضرت سال۔ خدیجہ سے بھی جن کی اچھا عمر اب 40 سال سنیں، تھی۔ اب سن لیں جو پوائنٹ ہے نا اس کی طرف آؤ، ایکسٹرا نالج یا ایکسٹرا ایفیشنسی کی طرف جاؤ گے تو میرا بھائی یہی ہوگا، یہ ایفیشنسی کے چکر میں ہی تم نے اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگایا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آج نہیں تمہیں سمجھ آئے گی، 5 سال بعد آئے گی میری بات، یہ ایفیشنسی کے چکر میں رگڑے جاؤ گے۔ اب میری بات سن لو، 25 سال کی عمر کا نوجوان ہو جس نے شادی کی ہو، اورینٹلسٹ گورے کہتے ہیں کہ جو پیک ٹائم ہے اس پیک ٹائم کے اندر وہ کسی بھی ایسی خرافات یا کسی بھی ایسے عیب اور نقص میں ملوث نہیں رہا جو عرب کے پری اسلامک ٹریڈیشن اور کلچر کا حصہ رہا ہو نوجوانوں کا۔ بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 8ویں سیرت میں بہت کچھ پڑھا، یہ نہ پڑھ سکے ہیں یا اس دن سو گئے ہوگے۔ اچھا لکھا ہوا ہے سیرتوں کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ جو شباب عرب ہیں، معاشر شباب ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اس گھاٹی کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حفاظت ایسے اس عمر کے اندر ہوتی ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ رات وہیں رک جاتے ہیں اور اس کسی محفل کے اندر ملوث نہیں ہوتے جو محفل غیر شرعی اور غیر اخلاقی معاملات، بلکہ میں غیر اخلاقی کہوں گا، اس وقت شریعت میں غیر اخلاقی معاملات کے اندر آپ داخل نہیں ہوتے۔ یار آپ قرآن کیا کر رہے واضح طور سے یہ ہو؟ اعلان کر رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، بالکل بالکل واضح طور سے اعلان کہ کبھی گمراہی کا کوئی کام کیا ہی نہیں، کبھی بد اخلاقی کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے میرا بھائی، تو آپ مجھے یہ بتاؤ جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، یہ 3 آپ کہہ رہے ہو نا شرک اس وقت جرم نہیں تھا، تو اور ملٹیپل کتنے جرم تھے وہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کر لیتے، کرائم تو نہیں تھا، کیوں نہیں کیا وہ؟ یہ میرے خیال سے ایک منٹ، ایکس مسلم ذرا، ایکس مسلم اگر آنےسٹ ہو تو یہ بتانا یہ والا جو اعتراض ہے آدم سیکر سے سن کر آئے ہو نا؟ جی نہیں، کس سے سن کر؟ ساحل سے؟ ساحل سے ہاں جواب تو نہیں ملا نا، جواب نہیں ملا۔ اچھا ایک منٹ میرے سوال کا جواب ملا؟ میں 12 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ساحل کے پاس بھی یہ آدم سیکر سے ہی آیا تھا، آدم فکر سے ہی آیا، بالکل بالکل۔ اور جب وہ بیچارہ اس کو بیچارے کو یہ لگ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایج ہے، کیونکہ میں خود الحاد کے بارڈر سے گزرا ہوں، ایک اسلام چھوڑ چکا تھا اس وقت نا، جب بندے کو یہ نئی نئی انفارمیشن جیسے یہ پھدک رہا ہے، نئی نئی انفارمیشن ملتی ہے نا، تو بندہ دیوار کے ساتھ چھلانگے، جیسے ککڑ جوان ہوتا ہے نا، پنجاب میں کہتا ہے ککڑ جوان ہوئے تو بنیرے تے ٹردا ہے، اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ ککڑ جب نیا نیا جوان ہوتا ہے نا مرغا، اس کو لگتا ہے کہ میرے وزن سے چھت گر جائے گی، وہ بنیرے پر چلتا ہے۔ ایک منٹ رکے ذرا، مینوں مول رکے اور رکے تو صحیح میرا پیارا بھائی، رکے تو صحیح۔ ککڑ جب جوان ہوتا ہے وہ بنیرے پر چلتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں چھت پہ چلا تو چھت گر جائے گی، اس میں ایفیشنسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نئے نئے نوجوان بیچارے جن کو نئی انفارمیشن ملتی ہے، ان کو یہ چیز لگتی ہے کہ گویا ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی ہے اس کا توڑ کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو کلیم آپ کر رہے ہو اس کو ثابت نہیں کر پا رہے، ایک مسنگ لنک ہے اس کے اندر۔ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو والدہ ایسے کرتی تھی، فار دا سیک آف آرگومنٹ والدہ ایسے کرتی تھی لہذا بیٹا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا۔ یار کمال ہے جی اچھا پھر آپ سے ملٹیپل سوال پوچھ، ان کا جواب کوئی نہیں، تو آپ سوچو ذرا، جواب نہیں ہے، جواب آپ کے پاس نہیں ہے جو اعتراض لے کے پھر رہے ہو۔ جی اچھا، ان کا جو پہلا سوال ہے، پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا نا قد افلح المؤمنون والا، پہلا جو سوال کیا تھا وہ آپ لائے تھے آدم سیکر سے، دوسرا لائے تھے آپ سچ والا سے، اور تیسرا لائے ہیں آپ ساحل سے جو اوریجنلی آدم سیکر کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو آدمی جو آپ کے، سن لیجئے، آپ کے ایمان کا جو لٹیرا بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، اس سے تو آپ نے اپنا ایمان لٹوا دیا، لیکن جو آپ کو پھر دلیل کی بنیاد پر بات بتا رہا ہے اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، which means کہ آپ پہلے ہی کمزور ایمان والے تھے، آپ کو ایک وہ چاہیے تھا جسٹیفیکیشن ایمان چھوڑنے کے لیے، جی، تو وہ آپ کو وہاں سے مل گیا۔ آپ کی 2 سوالوں
के जवाब को तस्लीम कर लिया। तीसरे सवाल का मुझे इस तीसरा हदीस जो में सवाल है इश्काल था। वो जो हदीस आपने दी है वो इस्लाम की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। इससे बढ़कर और क्या बात है? फिर तो वो मुझे ये हदीस पे सिर्फ ये इश्काल है कि अगर उस जमाने में ज़माने जाहिलियत की वजह से वो तो मगफिरत कबूल नहीं हो रही, तो जब वो भी मैच्योर नहीं हुए होंगे, जब एज मतलब उनके छोटे होंगे तो वो भी करते होंगे, तो ओ फिर वो भाई, कुरान इसके की वो लिए आयत आपको तो गलत चाहिए हुई ना। दलील, वो दलील नहीं है। इसके लिए आपके पास चाहिए दलील, दलील उसके खिलाफ है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कुरान कह रहा है। और अभी आमिर भाई ने इतनी लंबी जो गुफ्तगू की उससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरी गैर अखलाकी हरकतें थे उसमें भी मुलव्विस नहीं थे। इसी को आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन कहते हैं। आपके पास कोई दलील हो तो पेश करो ना, बगैर दलील के कैसे मान लिया आपने? चलो मैं एक और दलील देने लगा हूं। मक्कू ठप, एक मिनट, मक्कू ठप दलील आने लगी है। मक्कू ठप दलील, एक्स मुस्लिम, और ये जाके अपने गुरु घंटालों को पहुंचा देना। बुखारी शरीफ की हदीस है और जुमला सीरतों के अंदर है, आपको पता चल जाएगी, और मुतद्दद हदीस की किताबों सीरत में है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला पहाड़ी बयान पेश किया था, जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सारे लोग आए थे, आपने कहा था क्या मैंने तुम में अपनी उम्र नहीं गुजारी? उन्होंने कहा बिल्कुल गुजारी है। उन्होंने कहा कैसा पाया? उन्होंने कहा आपको सच्चा पाया, ये बोला उन्होंने। और उसके बाद जिस पैगाम को पेश किया वो पता क्या था? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कह दो कि एक खुदा है, एक के अलावा कोई नहीं। पूरे जखीरे हदीस और सीरत से निकाल कर दिखा दें कि किसी एक कुरैश मक्का वाले ने कहा हो मोहम्मद कल तक तो तुम खुद शिरक करते रहे हो। नाउज़ुबिल्लाह। गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो। कोई माशाअल्लाह। एक सीरत की किताब निकाल कर दिखा दो कि किसी मुशरिकी ने मक्का में से उठकर किसी ने कहा हो कि किसी मुशरिकी ने मक्का ने उठकर कहा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमें कहते हो शिरक ना करो, कल तो तुम खुद करते रहे हो। बताओ, दो दलील। और मेरे भाई, और आपका फार्मूला दुरुस्त कर दूं कि जनरल सेंस से आप आर्गुमेंट उस वक्त कर सकते हैं जबकि उसके खिलाफ कोई दलील ना हो। उस वक्त भी जनरल सेंस को एज एन आर्गुमेंट यूज करना कोई जरूरी नहीं है। यहां आप जनरल सेंस को यूज कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो आर्गुमेंट है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी गलती है। नहीं, आमिर भाई ने जो जवाब दी तस्लीम करता हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। ईमान लाते हैं। 3 सवाल थे, आपने कहा 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो ईमान ले आऊंगा। जी, ईमान कमजोर था, बिस्मिल्लाह करें। ईमान था ही नहीं, अभी आपने कहा कि एक्स मुस्लिम थे आप, अब आपको बिस्मिल्लाह करें इंशाअल्लाह। मैंने बोला मैं इस्लाम, रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने एक और मैं कलमा आपने पढ़ाऊं, अभी कोई बोला बात कि 3 सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। एक्स मुस्लिम भाई अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएं। एक मिनट, कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा मैं पढ़ाऊं या मुफ्ती साहब पढ़ाएं? बिस्मिल्लाह करें मेरा भाई। मुझे खुद आती, बाकी सवाल मुझे खुद आती, जी मुझे खुद आती, मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। खुद पढ़ें, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसका और वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ दें और उसका तर्जुमा भी कर दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा कर दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं गवाही देता हूँ, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुबारक, मुबारक, मुबारक। अब ये एक्स मुस्लिम के से एक्स हटा दें भाई, आमिर भाई इनके नाम से अब ये मुस्लिम है। जी जी, मैं हटा देता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो शो कर दीजिए। शो कर दें? चले मैं शो कर देता हूँ। इनका ओरिजिनल नाम जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो। ये है जी, एक मिनट, शफीक अली साहब। शाहीक अली, ये नाम जिनका। ठीक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल खुश किया मेरा भाई शाहीक भाई, जिंदाबाद। वजह से मैं आपके स्ट्रीम पे आना चाह रहा था, मुझे पता है कि आप लोग जवाब दे दोगे। अच्छा, अब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपका ईमान सल्ब करने की कोशिश की थी, आप उनके चैनलों से अपने आप को दूर कर लें। जी जी जरूर, ठीक है। और कोई सवाल हो, कोई चीज हो, राब्ता करें।
जबरदस्त जबरदस्त, अनसब्सक्राइब करें। और दूसरा, ईमेल नीचे नजर आ रही है आपको, मुफ्ती साहब से रब्ता करें, मुझसे मुनासिब समझते हैं, मुझसे रब्ता कर, जिससे भी आप रब्ता करना चाहें करें। ये ईमेल नजर आ रही है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ईमेल करके स्पेशल बताइएगा कि मैंने इस्लाम कबूल, मैं शाहिक हूँ जो एक्स मुस्लिम से आया था और मेरे वो सवाल थे, मुफ्ती साहब उसको टॉप प्रायोरिटी पे ले लेंगे। मुझसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, जो भी आपका सवाल जरूर आपने बताना है। और हिम्मत नहीं हारनी मेरा भाई, ईमान आजमाइश का ही नाम है। आजमाइशें तो आएंगी, सवालात आएंगे, उलझने आएंगी, ये खुद तो हमारे सामने आते नहीं। मैं सब मतलब मस्जिदों के इमाम के पास गया तो नहीं जवाब मिला, तो इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं था कि मैं छोड़ चुका, मतलब ईमान कमजोर था, इसी वजह से मैं आप लोगों के चैनल पे आया मुझे इसका जवाब मिल जाए। ठीक है, चले माशाल्लाह, और बेहतर है। अल्लाह मैं आपको तो वो लोग खैर का बात मानता ही नहीं हूँ जब तक मैं रिसर्च नहीं कर लूँ। वो लोग तो जैद पटेल से डिबेट में मैं देखा हूँ बहुत बार हारा है। मैं चाहता हूँ आप लोग जैद पटेल के साथ एक वीडियो बनाइए। वो भी हो बहुत चुकी है अच्छा हमारी एक सवाल वीडियो उनकी की बन चुकी है, हम भी उनके चैनल पर आते हैं, वो भी आते हैं। तो चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। बहुत शुरू शाइक भाई, जी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तरह जो जितने भी इस्लाम से दूर जा रहे हैं गलत फहमी से या कम नॉलेज की वजह से, वो आपकी तरह उनको सोच रखनी चाहिए कि जब जवाब मिले तो कर लें। थोड़ी सी दिक्कत होती है, यकीनन वो भी इस पार्ट का हिस्सा था, मगर उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है। वमा तौफीक इल्ला जी बिल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी आमिर भाई, बकिया हजरात चलना है या रुकना है? अच्छा हजरत, 4 4 घंटे हो घंटे गए, हो गए। बाकी जी 4 हाँ, घंटे से ऊपर हो गया, मगर ये है कि बड़ी मजे की गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह, जी जितनी भी जी रही। जी हाँ, मुख्तलिफ माशाल्लाह। फ्लेवर्स से उसके, मुख्तलिफ कलर्स से माशाल्लाह। ये और ये एक, जो शहीद भाई हैं, इन्होंने तो दिल खुश कर दिया ना, इनकी आमद ने हाँ तो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।